Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? I'm fine, better. All well. How are you guys? All internals and everything is over now? Yes, sir. Okay. All right. So, starting up here. So, so today we'll be talking about MailChimp, which is email marketing platform. Uh, as we know, email marketing is also integral part of digital marketing, where we can do a lot of good work, or we can reach out to our customers very cheap format, because it hardly cost us anything. Mailchimp में जो free version है, we can send up to 2000 people email newsletter or your promo email on using Mailchimp. Okay, so keeping that in mind, we will be discussing about how we can leverage it, how to create contacts, and then how we can actually add it to various subscriber list or other list, and then we can actually create various formats and can send it across. The good part with MailChimp is it's not that you can only send emails. You can also create various landing pages. You can also create mini website like you did it on Wix. Similarly, we can also create a Kaam Chalav kind of website also on this, so that even if you don't have professional website, your campaign or your other activity will not stop. तो डिजिटल मार्केटिंग हमारा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और उसको हम चाहें तो फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, अपने सोशल मीडिया के साथ भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो first and foremost thing is like we will be going forward, and then we'll be opening call Mailchimp, right? So it's mail, mail, and chimp chimp. So I'll just put this in the in text in chat or as well. Okay, now a step of sign up is as it is with any other platform. Okay, so though I have created multiple account, so you can manage with the multiple accounts as well. But good part is from sender. I'm like, even if you create multiple accounts, say for example 2001 mein hai, 2001 mein hai, but as a sender email ID you can fix it whatever you want. Okay, so let's start working from first level. Sign up for free. So confirmation mail will be sent. So I'll just recheck it. So here I got the confirmation mail in my email box. Activate your account. All right. And then it goes, I'm not a robot. I'm taking the free version of it, where it is saying 2000 contacts, 10,000 email ID sent. Right. The 2000 contacts can be added and 10,000 emails can be sent free. That means to say, to 2000 contacts you can send up to 5 times. Right. So that is what it says. Right. So maximum number of contacts that can be added in free email, free Mailchimp
is 2000, but you can send all these 2000 people 5 times in a month. So this is about monthly cycle. So I'm just putting up my name. This is optional, so I can put it. It has to be phone number is optional. I'm just leaving it because I have already used it in my previous contact list. Please enter business name. Okay, this is right. Tell us about your contact. This can include people who signed up with Receive Email Marketing. Do you have any contacts? So I'm keeping it yes. How many email contacts do you have? I'm just keeping it 500 or less. I can make it up to 2000, but I just kept it 500 and less. Right. Help us determine that best experience for you. Do you sell product or services online, or both, or neither? Right. We can skip this step as well, just to make sure that we can go to that level. I'm just keeping it both. Own website or e-commerce store, another business site or e-commerce store. So I will keep it as a service. So select additional email you want to receive from MailChimp and others. E-commerce, newsletter, MailChimp presents, courier highlights. So I'll just say MailChimp presents, so that MailChimp promotional email later will come. Now this is, once you set up, this is something that will come. Okay. So first thing what we have to do is, like, we have to go to create and then click at email. Then first step is regular. So here we have to put in the campaign name. For example, so the moment I clicked on it, it is asking about whom you want to send it to. So I can have add recipients. So it is showing no contacts yet. So we can either import contact from our contact list, or we can create it or post it in txt format. Okay. So may I request you guys to put your email ID in the chat, so that I'll put that in the contact and will send a test newsletter to you guys, so that you can see how you will receive it. So if all of you can either post it in the WhatsApp group or in the this Zoom chat, your email IDs, so I'll start using that in the contact list. Yes, Fatim has sent. Anyone else? Yeah, okay. Well, just keep it over here. Aslam Khan has sent. Yeah. Then we have
Okay, so I have taken these email IDs, so I will be adding this in the contact. So there are two versions of using it. One is I can do copy and paste in text format. Other thing is like I can directly import it using CSV. So what I'll do, I'll put this in Excel sheet and then will be importing it into that format. Okay. So I'm just keeping it these. I'll also add one or two of my email ID so that I will test it. Okay. And then I'm saving this. We have to save this in CSV format. Okay, we have to save this in CSV format. So I'll be saving it in that format, not in the Excel sheet. Excel format we have to save it into. So I'm just putting DM test. Okay, so this is being saved. All right, and then go to import contact. So it is asking for upload CSV or tab txt file. So or you have option of copy and paste. So I'm just taking CSV so that it is easy. I'm keeping all of you guys in subscribed format. Okay, so I can have this in the subscribed format, and then we'll go update any existing contact. Since I created it fresh, so there is no contact. So I'll continue with this. And then I can create a tag for this. So it is DM test. Now the importance of tagging is based on these tags, you can segregate your subscribers कि कौन सा सब्सक्राइबर या कौन सा ईमेल लिस्ट किस कैटेगरी के लिए है. कोई कस्टमर हो सकता है, कोई आपका इन्फ्लुएंसर हो सकता है, यू वांट टू डू इट फॉर योर ओन इंटरनल स्टाफ, या फिर और आप किसी नाम से कर सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, 2 days वर्कशॉप, कुछ भी हम उस तरह का नाम दे सकते हैं. ओके, now this is done. So what I'll be doing, I'll be just going on to the next level, and it is showing that all these contacts being imported. That is okay. I have taken column 1, so 8 contacts imported. Yeah, so let's see what is that we have to do next. Complete import. If you want to add more, you can add more contacts as and when you want to add on. So first part is whom we want to send it across 2 parties over. So whom we want to send, right? So 8 participants. In case I want to add few more, I can go to edit your recipients, and then from there I can add it. Okay, now next question is who will be sending. So add from. So I can add it my name or anything that I want to. Okay, so this is it. From email ID, in case I want to change this from email ID to my customer's email ID or any other email ID, I can do that as well. Say for example, I want in a sender, I want it to be Shakir dot I can do that. जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट ज्यादा है तो आप लोग मल्टीपल अकाउंट मेलचिम्प के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, बट सेंडर ईमेल आईडी सेम रखेंगे सो दैट रिसिपिएंट को जो भी ईमेल जाएगा वो इसी नाम से जाएगा. ओके, तो मैं चाहूं तो इस चीज को रख सकता हूं, या फिर जो मेरा पहले का ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ था मैं उसको भी यहाँ पे रख सकता हूं.
ये चेंज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप डोमेन बेस्ड ईमेल आईडी अगर रख रहे हैं तो कभी कभी उस डोमेन को ऐड करना पड़ता है कि कौन सा। जीमेल इज फ्री, जीमेल फ्री है, और इसलिए जीमेल ये जीमेल कोई भी आप जीमेल आईडी अगर आप ऐड करें तो उसके लिए डोमेन कंफर्मेशन नहीं पूछता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी ईमेल आईडी दैट यू आर पुटिंग अप, जिससे कि आपने ईमेल मेल चिंप का अकाउंट नहीं बनाया है, उसके अलावा कोई और डोमेन नेम है तो वो कंफर्मेशन के लिए पूछता है। बट आई एम जस्ट कीपिंग दिस एंड केप्ट इट सेफ। ओके, नाउ आपको सब्जेक्ट लाइन बनाना है। ओके, सो वी हैव टू क्रिएट सब्जेक्ट लाइन। सो आई कैन से लर्न short term digital marketing in 6 weeks. For example, get 20% off on sign up today. So this is will be the subject line, but preview text इस तरह से आएगा जो कि आपके subject line के साथ आता है। we can see यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू टेक्स्ट कैसा आएगा। ओके, सो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद प्रीव्यू टेक्स्ट आएगा। ओके, तो ये हमारे लिए एक एडिशनल होता है कि आपका ओपन रेट, जो क्लिक थ्रू रेट से या ओपन रेट है, वो थोड़ा सा बढ़ जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये अपना प्रीव्यू टेक्स्ट डाल दिया है। अब यहाँ पे एक्चुअल चीज आता है कि क्रिएट कंटेंट। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिजाइन एन ईमेल। क्लासिक बिल्डर से आप कर सकते हैं या फिर कोई भी दूसरे ऑप्शन से आप कर सकते हैं, राइट। बीटा ये जो ऑप्शन है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग विद सिंपलर वन। ओके, तो जिसके अंदर हम क्लासिक बिल्डर से हम इसको स्टार्ट करते हैं, वेयर इट विल गिव अस फ्यू ऑफ द ऑप्शंस, जिसके अंदर से हमको टेम्पलेट चूज करना है, राइट। और जैसे हम लोगों ने विक्स में अपने टेम्पलेट को कस्टमाइज किया था, कहाँ पे इमेज डालना है, कहाँ पे क्या डालना है, वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये सेल अ प्रोडक्ट है, आपको बेसिक अलग अलग वर्जन है। शोकेस योर प्रोडक्ट, शेयर योर बिग न्यूज, शेयर योर स्टोरी, राइट, या फॉलो अप करना है, या फिर बेसिक वर्जन आप 1 कॉलम का ले सकते हैं, फुल विड्थ का ले सकते हैं, 1:2 कॉलम का ले सकते हैं। 1:2 कॉलम मतलब 2 प्रोडक्ट्स आपको आ जाएंगे, राइट। तो मैं बहुत ही बेसिक ले रहा हूं, आप लोग इसको जो भी एडवांस, बिकॉज यू गाइस हैव क्रिएटेड इट फॉर योर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, सो यू कैन गो फॉर योर शोकेस योर प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए भी आप कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल चीजों के लिए भी आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं बिल्कुल ही बेसिक वर्जन ले रहा हूं, जस्ट टू शोकेस। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आई कैन अपलोड माई लोगो। सो जैसे ही मैं इस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, इट इज शोइंग मी समथिंग ओवर हियर, सो आई कैन गो एंड click at replace. So whatever the logo, in case I have some logo, I'll upload it. सो लोगो जैसे ही मैंने अपलोड किया, ये लोगो डिफॉल्ट है। आप कोई भी ईमेल टेम्पलेट अगर क्रिएट करेंगे तो ये ले लेता है, बट स्टिल इट गिव्स यू एन ऑप्शन दैट यू कैन रिप्लेस इट। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बार जो लोगो आपका आ गया वही आपको यूज करना है। सो दिस इज डन ना। उसके बाद इसको आप रीसाइज करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जैसे भी करना चाहते हैं आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। सो आई एम डन विद दिस, आई हैव रीसाइज्ड इट। नाउ यहाँ पे है, ये दूसरा ऑप्शन आपको देता है कि यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। राइट,
सो इफ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये डाला है, और आप और भी यहाँ पे कुछ बाय लाइन्स डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस सेक्शन को डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे करना चाहें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, आप सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जैसे भी आपको नॉर्मल वर्ड एडिटर, चूंकि ये एडिटर नॉर्मल वर्ड एडिटर है तो आप इसको जैसे भी चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, कौन कौन से मॉड्यूल्स इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ लर्निंग है या और भी क्या है, हम इसको जो भी लिखना चाहें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो हम लोगों ने जो भी इसके अंदर अभी जो भी लर्निंग प्रोसेस है हम शुरू से कर सकते हैं। लर्न बेसिक डिजाइनिंग यूजिंग कैनवा। दूसरा, लर्न बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट यूजिंग विक्स। ओके, उसके बाद हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। ओके, लीड जनरेशन कैंपेन। ऑलराइट, उसके बाद हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑलराइट। तो मैंने इसको सेंटर अलाइन कर रखा है, आप चाहें तो इसको लेफ्ट अलाइन कर लीजिए, राइट अलाइन कर लीजिए, सेंट्रलाइज कर लीजिए, इसके हम बुलेट पॉइंट्स डालना चाहें हम बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं। राइट, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन, इट्स एज सिंपल एज पुटिंग अप एनी वर्ड एडिटर। राइट, अब अगर हमको यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करना है तो हम इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट करना है हम वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। राइट, तो जैसे यहाँ पे है, हम इसके नीचे आके यहाँ पे अगर हम कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज का है, कंटेंट स्टूडियो से आप इमेज अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लिंक है, यानी इमेज का लिंक है, तो आप सीधा सीधा इमेज के लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ। जैसे आप कैनवा में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इमेज इंसर्ट करते हैं, आप वैसे ही इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चीज को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओके, अब ये कह रहा है कि आप इसके हाइट एंड विड्थ को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, अगर इतना बड़ा रखेंगे तो बहुत बहुत बड़ा दिख के आता है, तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। हम 400 बाय 400 का, ये स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा, 400 बाय 400 में रहेगा। ठीक है, ओपन इन ए न्यू विंडो, अगर हम चाहें तो इस चीज को ओपन इन ए न्यू विंडो करें और इमेज पे अगर कोई क्लिक करता है, ठीक है, तो इमेज पे अगर कोई क्लिक करता है तो वेबसाइट पे जा सकता है। ओपन इन न्यू विंडो, दिस इज व्हाट, सो इमेज पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो नए विंडो पे ओपन हो जाएगा और इसको हम सेव करके आगे हम मूव कर जाएंगे। ओके,
So this is how it is. I have inserted the image और ये image हमारा यहाँ पे आ गया है. अब हम इस image को चाहें तो हम इस इमेज को जैसे भी हम फॉर्मेट में करना चाहें हम कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह से आपका एक बेसिक वर्जन आपका यहाँ पे तैयार हुआ है. आप अपने हिसाब से और भी चेंजेस और भी कंटेंट अगर कुछ आप डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं. सो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. यहाँ पे हमने ये सारी चीजें डाली हैं. उसके बाद अगर हमको और भी कुछ यहाँ पे डालना है फॉर फर्दर डिटेल्स यू वांट टू रीच अस, तो हम यहाँ पे अपने डिटेल्स को और हम डाल सकते हैं. फॉर further details contact us at व्हाट्सएप का भी अगर हम डालना चाहें तो हम व्हाट्सएप का भी डाल सकते हैं. यहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को. यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आपको दिख के आ रहा है. आप यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आप डाल दीजिए. ये वेब एड्रेस के अंदर चला जाएगा और हम इसको इंसर्ट कर देते हैं. ओके, सो दिस इज आप जैसे कोई आइकॉन डालना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप का आइकॉन डालना चाह रहे हैं, जो भी इमेजेस आइकॉन जो भी डालना चाह रहे हैं वो आप डाल सकते हैं. ओके, सो इस तरह से आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया. आप इसको और भी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं और भी कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उस चीज को कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुंच गए. ओके, अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप अपना इंस्टाग्राम और सोशल जो लिंक्स हैं उसको आप एडिट कर सकते हो. तो यहाँ पे हम ट्विटर, लिंक्डइन जिसका भी हम डालना चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्विटर है, फेसबुक है और आपकी वेबसाइट का लिंक है. आप कोई और डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं. आप लिंक्डइन डाल सकते हैं, यूट्यूब डाल सकते हैं, गूगल प्लस, राइट. तो मैं यूट्यूब अगर डाल रहा हूँ तो मैं अपने यूट्यूब का जो भी मेरा सोशल चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, उसका लिंक मैं डाल सकता हूँ. ओके, फेसबुक है तो मैं अपने फेसबुक का लिंक डाल सकता हूँ. वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे. ऑलराइट, सो ये चीज़ें हमारी डल गई. अब हम इसको सेव करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं. और भी अगर आपको कुछ डालना है आप डाल सकते हैं. ओके, सेव एंड क्लोज. सो दिस इज डन. नाउ इट कम्स लास्ट में जो आपके ईमेल के साथ फुटर आता है उसको हम एडिट कर सकते हैं. यहाँ पे हम गए, अब इसको भी हम एडिट कर सकते हैं. ओके, कॉपीराइट करंट ईयर यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है. आप इस पूरे को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. कुछ और जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, बट मैं उसी फॉर्मेट में जा रहा हूँ सो दैट
विजिबल रहे, लिस्ट योर कंपनी। राइट, आप और भी फर्दर डिस्क्रिप्शंस लिखना चाहें तो आप इस ईमेल न्यूज़लेटर के बारे में जैसे नॉर्मली जाता है आप वो कर सकते हैं। नीचे इसके एड्रेस का आ रहा है, मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। ओके, आर मेलिंग एड्रेस, ये पूरी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। I can put my email ID, I can put my phone number also over here. Okay, but nevertheless हमने बॉडी के अंदर डाल दिया है तो इसलिए मैं इसको सेव एंड क्लोज कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ दिस टेम्पलेट इज रेडी। नाउ व्हाट वी कैन डू, इसको हम प्रीव्यू कर लेंगे कि हमारा टेम्पलेट दिख कैसा रहा है। सो आई कैन गो बैक एंड लुक इनटू दिस प्रीव्यू फॉर्मेट। तो ये हमको डेस्कटॉप फॉर्मेट में बता दे रहा है कि ये हमारा किस तरह से दिखेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा राइट की तरफ जा रहा है, तो हम चाहें तो इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं सो दैट सारा का सारा ये हो रहा है, बट स्टिल ये यहाँ पे आपको इस तरह के फॉर्मेट में ये चीजें आ गई। ओके, मोबाइल पे कैसा दिखेगा वो हम देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको आपका बैनर जो है थोड़ा सा मोबाइल पे डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो आप इसके डायमेंशन को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं 400 बाय 400 रखा हूँ, आप चाहें तो 300 बाय 300 रख सकते हैं, 250 बाय 250 भी रख सकते हैं, सो दैट ये दिख के आए। और उसी तरह से इनबॉक्स का भी प्रीव्यू देता है, बट ये प्रोफेशनल वर्जन में देता है। सो फॉर नाउ मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। अगर हमको कोई चीज़ सेट नहीं हुआ है तो हम उसको फिर से जाके उसको एडिट कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं। ओके, सो इफ एग्जांपल यहाँ पे मैं आया हूँ, ये ऑप्शन है, इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी अगर लेफ्ट अलाइन करना है तो हम इसको भी लेफ्ट अलाइन कर लेंगे। दैट इज ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन, सो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, इमेज के बारे में अगर हम देखें तो इमेज को हम इसी इमेज को रख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये सारी चीजें ओके हो गई। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या है, कंटिन्यू। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आपके सारे स्टेप्स करीब करीब कंटिन्यू कंप्लीट हो चुके हैं। आपका 2 कंप्लीट हो चुका है, 8 रिसिपिएंट्स का हमने आईडीज डाले हैं, फ्रॉम का आई आ गया, सब्जेक्ट आ गया, कंटेंट आ गया, और ये सारी चीजें आपका ये आ गया। अब यहाँ पे आपको एक मेलचिम्प आपको ऑप्शन देता है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये ज्यादातर रेंडमली जनरेटेड होता है, बट चाहें तो आप इसको एडिट करके शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, तो जब आप इसको सेव कर लीजिएगा तो ये आपका एक लिंक हो गया जो कि आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर आप चाहें इसको फेसबुक के साथ कनेक्ट करना, तो आप फेसबुक के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक आईडी के साथ इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो कंटिन्यू एज शाकिर, इफ आई विल कनेक्ट इट कंटिन्यू एज शाकिर, यहाँ पे ये हमारा एक्सेस ले लेता है, और उसके बाद तो हमारा हम जो भी ये पोस्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी ये हमारा पोस्ट हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देखिए कि जब हमने इसको इनेबल कर दिया है, ऐड टू सोशल पोस्ट, हम इसको इनेबल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, मैं यहाँ पे पोस्ट, अब यहाँ पे हम चाहें तो प्रीव्यू के लिए यहाँ पे हम बहुत बहुत सारे यहाँ पे हमारे पेजेस हैं, तो हम जिसको भी यूज करना चाहें हम उसको यूज कर सकते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो मैं इसको यूज कर लूंगा,
और यहाँ पे मैं जो इमेज है वो हम अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला इमेज हम चाहते हैं कि वहाँ पे डिस्प्ले हो, तो हम उसको यूज कर लेंगे। ओके, या जो भी इमेज आप यूज करना चाहते हैं, सो दैट प्रीव्यू के ऊपर सोशल मीडिया में जब वो ऑटोमेटिकली पोस्ट जाएगा तो वो इसी चीज को वो क्लिक कर लेगा। ऑलराइट, आप एक के साथ मल्टीपल इमेजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एक को लेके चल रहा हूं। उसी तरह से ट्विटर में जाएगा, उसी तरह से इंस्टाग्राम में भी चला जाता है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई हैं। अब हम यहाँ पे सेंड का ऑप्शन, यानी शेड्यूल जो है, शेड्यूलिंग का ऑप्शन पेड वर्जन में आता है। जो फ्री वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर फ्री का वर्जन, जो शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं आता। शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि आप शेड्यूल कर सकते हैं कि ये वाला ईमेल आप किस टाइम पे भेजना चाह रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया और हम अब इसको हम सेंड करेंगे, जो कि अभी आप लोगों के इनबॉक्स में ये पहुंचेगा। ओके, राइट, तो यहाँ पे है सेंड नाउ। So I can go back and click on my campaign। ऑल कैंपेन पे हम जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख के आएगा कि ये अभी सेंडिंग फॉर्मेट में है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये अभी बता रहा है सेंडिंग। दिख रहा है आप लोगों को सेंडिंग? इज इट विजिबल टू यू गाइस? या Yes, sir. ओके, सो ये सेंडिंग बता रहा है। थोड़ी देर में ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से शायद 1 मिनट लगे, क्योंकि ईमेल कम है। तो बहुत ही क्विकली ये आपके इनबॉक्स पे होगा। एडवांटेज इस मेलचिम्प को यूज करने का ये है कि बहुत सारे, जब आप फॉर एग्जांपल जीमेल से आप मास मेलिंग कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, तो वो आपके स्पैम में, प्रमोशन में, बहुत उसमें चला जाता है। बट मेल चिम्प के साथ एडवांटेज ये है कि मेजॉरिटी यानी मैक्सिमम चांस ये है कि ये आपके इनबॉक्स में जाएगा। जब एक बार ये ईमेल चला गया तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिख के आ जाएगा, कितने लोगों को भेजा गया है, कितने लोगों ने ओपन किया है, कौन लोगों ने क्लिक किया है और कितने लोगों से बाउंस हुआ है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अभी चूंकि इट्स जस्ट सेंट, सो आप लोगों के पास आएगा और जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन हमारे लिए इनेबल हो जाएगा। अभी नहीं आया है हमारे पास भी, जैसे ही आता है।
आप लोगों को आया है अभी तक या अभी नहीं आया मेल? Yes, sir. I received from Google My Business. Okay. You have received it. Anyone else has received it? Anyone else received? और जिनके ईमेल आईडीज हमने यूज किए हैं उसको किसी को आया? अच्छा, जिसको रिसीव हुआ है, कैन यू प्लीज ओपन दैट ईमेल आईडी एंड क्लिक ऑन द लिंक व्हाट एवर आई हैव, हम लाइक वो इमेज के ऊपर जो लिंक है उसको आप ओपन करिए सो दैट इट विल गेट ट्रैक्ड। अभी भी ये सेंडिंग बता रहा है, तो सो दैट इट्स इन द क्यू, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये 1-2 मिनट और लेगा और ये आ जाएगा। The mail says how many times my website is been viewed. राइट। आपको अभी जो मैंने मेल भेजा है वो पहुंचा आपको? No, sir. अच्छा, नहीं अभी सेंडिंग ही बता रहा है, सो इसलिए शायद ऐसा हो। यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है कि कितने लोगों को पहुंचा है, कितने लोगों ने आप मतलब बैनर को क्लिक करके उसके बाद उसको बैनर को क्लिक किया है और वेबसाइट की तरफ गए हैं, वेबसाइट पे गए हैं, तो ये सारा डिटेल ये यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स के अंदर आ जाएगा। कितने लोगों ने रिसीव किया है लेकिन वो उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया या फिर रिसीव करने के बाद उन्होंने खोला नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो ये अभी स्टिल इन द सेंडिंग फॉर्मेट, published. So ये ईमेल सेंड हो गया, शायद देखते हैं अब आया क्या। मेरे पास जीमेल जो मेरा इनबॉक्स है उसमें आ चुका है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से वो आता है, फिर मैं अगर क्लिक करूँगा तो वो फिर कैसे। ऑल राइट, तो आप ये देखिए, आपको हमारा जीमेल ये ईमेल इंटरफेस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे कुछ और आया है, नॉट येट रिसीव्ड, रिसीव्ड। सलवा यू हैव रिसीव्ड राइट? ओके, तो चलिए अब ये ईमेल यहाँ पे मुझे आ गया है और मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ओपन कर लीजिए, जो ईमेल है उसको क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, और मैं उसके बाद इस बैनर के ऊपर क्लिक करता हूँ विच इज टेकिंग मी टू द वेबसाइट। ओके, इसके अलावा अगर मुझे किसी और लिंक पे क्लिक करना है, जैसे यूट्यूब चैनल है या फेसबुक है या मुझे वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो मैं उसको भी क्लिक कर सकता हूँ और वो भी मुझे यहाँ पे बता देगा। वो सारे के सारे रिकॉर्ड ट्रैक करके वो हमें बता देता है कि हमारा लिंक कितना हुआ है, ये कितने लोगों ने क्लिक किया है। ओके, सो आई हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। ओके, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और व्यू रिपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, ठीक, थोड़ी देर में सारे के सारा सारा जो जितने भी क्लिक्स हुए हैं या ओपन हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैप्चर करके ये हमारे को बता देता है कि ये आपका कितना हुआ है, कि हाउ मेनी पीपल हैव क्लिक्ड ऑन इट। उसकी पूरी समरी हमारे लिए सामने आ जाता है और हम उसको रिव्यू कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस।
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सोशल पोस्ट भी पब्लिश हो गया है, राइट। तो सोशल पोस्ट जो कि हमने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया था वो भी पब्लिश हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ कि वो क्या पब्लिश हुआ है। आप ये देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मेरा फेसबुक का अगर दिख के आ रहा होगा तो पब्लिश्ड बाय मेलचिम्प लॉन्ग शॉर्ट टर्म दिस, ये सारी चीजें यहाँ पे फेसबुक पे जो हमने इंटरफेस डाला था कि ये वाला पब्लिश होना चाहिए, ये यहाँ पे फेसबुक पे पब्लिश हो गया है। जिसको कि अगर हम ये वाले लिंक को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा वो लैंडिंग पेज जो भी हमने क्रिएट किया है ईमेल वाला वो हमारा यहाँ पे खुल के आ जाता है, राइट। सो दिस एक्चुअली गिव्स यू कंप्लीट डिटेल अबाउट जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप पब्लिश कर रहे हैं वो भी आपको बता रहा है। फेसबुक पे मेरा पब्लिकेशन है, मैंने उससे कनेक्ट किया और फेसबुक पे पब्लिश हुआ तो वो हमारे को यहाँ पे आ गया। ओके, और यहाँ पे देखिए आपको ये सामने दिख के आ गया कि कितने 3 ओपन्स हैं और 2 क्लिक्स हैं। ओके, सो आई कैन गो ओवर हियर, सॉरी, कैंपेन पे जाना है, व्यू रिपोर्ट देखना है। ओके, सो पहले वाले का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं आप लोगों के सामने। और यहाँ व्यू रिपोर्ट पे हम जाते हैं। व्यू रिपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 people have opened my this email, 2 have clicked it, एक से बाउंस हो गया है। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा लिंक है। टॉप लिंक्स क्लिक्ड ये वाला है, ये सारा यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप का ये लिंक है, ये क्लिक हुआ है तो यूट्यूब का चैनल किसी ने क्लिक किया है, वेबसाइट के लिंक को क्लिक किया है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। ओपन रेट इज 42%, एवरेज एडवाइस क्लिक थ्रू रेट्स इज दिस, 24 आवर्स का परफॉर्मेंस ये आ रहा है। अब किस किस ने खोला है तो वो यहाँ पे पता चल गया है। सैफ सिकंदर हैज सेंट इट, हैज ओपनड इट, info at digitos जो कि मेरा email ID है, Salva has opened it. How about others? Others have received the email or they have not received it? I think in my mail the first letter capital was there, so I didn't receive it till now. Oh, okay, maybe. Anyone else? Because we have used I think 7 8 email IDs, 7 email IDs. और किसी को आया है? यहाँ पे असलम खान इज सेइंग नॉट येट। आप जरा सा देख लीजिए इफ इट इज देयर, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ईमेल बाउंस होता हुआ दिख रहा है। वो हम चेक कर लेते हैं किसका ईमेल बाउंस हुआ है। ठीक है, ठीक है, मेरा ही है अली एट शाकिर अली, ये बाउंस शाकिर अली डॉट इन। ठीक है, सो मेरा ही बाउंस हुआ है तो मेरे ख्याल से बाकी सबका बाउंस नहीं हुआ है। तो मेरा जो ऑल्टरनेट ईमेल आईडी है उससे बाउंस हुआ है, बाकी तो किसी का भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि बाउंस हुआ है। सो देखिए आप लोग कि शायद देर इज अ पॉसिबिलिटी स्पैम में तो नहीं गया है। रिसीव्ड सर, असलम खान हैज सेट रिसीव। ठीक है असलम, आपने रिसीव कर लिया है तो जरा सा आप उसको ओपन कीजिए और जो भी लिंक्स हैं या जो भी बैनर्स हैं उसको क्लिक कीजिए तो हमें भी पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 8 रेसिपिएंट्स आर देयर, सो एक और को मिल गया है। और किसी को आया है? Yes, sir. मिला है तो आप ओपन कर लीजिए फातिम, आप ओपन कीजिए और उसके बाद उसको क्लिक कीजिए। तो ये एक रियल टाइम सिनेरियो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के बाद पता चलेगा या बहुत देर के बाद पता चलेगा। ये आपको रियल टाइम सिनेरियो है जहाँ से आप इस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, जब तक आप लोग देखिए कि किस किस को आया है, जिनको भी आया है वो ईमेल ओपन करें और उसके बाद किसी ना किसी लिंक को क्लिक करें। Not received, sir. हेलो, ये चौथा भी ओपन हुआ है, देखते हैं और किनका, किन्होंने, 4 लोगों ने ओपन किया है, 4 लोगों ने क्लिक किया है।
तो ये ओपन जो है वहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि किस किस ने ओपन किया है। ओके, AK खान हैज ओपन सैफ, राइट, 2 बार ओपन किया है। ठीक है, जैसे भी है वो हमारे सामने आ जा रहा है। I haven't received, sir. ओके, रिफ्रेश कर लीजिए, शायद आ जाए, बिकॉज मेरा ख्याल से स्लोली स्लोली इट विल बी कमिंग, बट एनीवेज। यहाँ पे एक और आया है। ओके, Fatim, you received or you have not received, Fatim? Not received. Okay. बट इनको यानी इस मेल चिम्प को ना इसके बाउंस होने का रिपोर्ट है, ना इसके नॉट रिसीव का रिपोर्ट है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी स्पैम में भी एक बार चेक कर लीजिए, या ईमेल के अंदर आपका प्रोमोशनल एज ए अगर फोल्डर बना हुआ है, मेन प्रोमोशनल फेसबुक इस टाइप का भी रहता है, तो प्रोमोशनल में भी चेक कर लीजिए, कहीं शायद वहां पहुंचा हो, बट दैट्स ओके। Yes, sir. Spam folder में है. स्पैम फोल्डर में आया, राइट। आप बाकी लोग भी स्पैम फोल्डर चेक कर लीजिए, शायद वहां पे हो। तो अभी देखा जाए तो 4 ईमेल आईडीज हैं जो कि ओपन यहाँ पे बता रहा है, डिडंट ओपन। तो आपको यहाँ पे सारे के सारे एक्टिविटीज यहाँ पे आपको दिख के आ जाते हैं। ओके, ऑलराइट। तो जितने भी हैं, जो भी आपके एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर किसी ने क्लिक किया है तो वो भी आ जाएगा। अगर मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ कि आई डोंट वांट टू रिसीव एनी ईमेल इन फ्यूचर, दैट विल आल्सो गेट कैप्चर्ड ओवर हेयर। ये जितने लोगों ने क्लिक किया है उसका है। बाउंस्ड वो भी दिखा देगा। कंप्लेंट, अगर कोई ये कह रहा है कि दिस इज स्पैमी थिंग्स विच इज बीइंग सेंट, तो वो भी यहाँ पे दिखा देगा। ओके, तो इस तरह से आपके सामने एक पूरा का पूरा प्रोसेस, यहाँ पे देखिए 5 ओपन्स हो गया, 5th ओपन्स शायद शहरयार का था या जो भी होगा। यस, शहरयार हैज ओपनड इट, एंड देन ये इन्होंने ओपन किया है, और इन्होंने क्या क्या एक्टिविटी किया वो भी हम देख सकते हैं, राइट। इस लिंक के ऊपर भी इन्होंने क्लिक किया है, तो ये सारा का सारा ओवरव्यू आपके सामने आ जाता है, राइट। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी मल्टीपल कैंपेन्स आप क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। उसी मतलब ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को डिफाइन किया। तो उसी तरह से आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल ऑडियंस में और भी कॉन्टैक्ट्स को अगर हमको अपलोड करना है, राइट, तो अगर हमको ऑडियंस में और भी अपलोड करना है तो यहाँ पे दिख के आ रहा है ऐड कॉन्टैक्ट्स। आप ऐड कॉन्टैक्ट में बल्क लेवल पे अगर आप कर रहे हैं तो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं। अगर एक सिंगल सिंगल कर रहे हैं तो इंपोर्ट जो ऐड ए सब्सक्राइबर के फॉर्मेट में जाएंगे, तो वहां पे आप सिंगल सिंगल ईमेल्स को ऐड कर सकते हैं। नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट ईमेल, फर्स्ट मेल, लास्ट नेम, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, और इसके अंदर टैग कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी के अंदर आप डालना चाह रहे हैं, एंड देन यू कैन ऐड देम एज ए सब्सक्राइबर।
ये आपका इंडिविजुअल का है। अगर आप बल्क में करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स करेंगे। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट करके या तो CSV फॉर्मेट है या TXT फॉर्मेट है या फिर कॉपी पेस्ट है, राइट। अगर हम कॉपी पेस्ट के फॉर्मेट में जाते हैं तो इस तरह से ये ऑप्शन देता है। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये ईमेल आईडी डाला, राइट, तो आप इंटर करते जाएं, ईमेल आईडी डालते जाएं, इंटर करते जाएं, उसके बाद कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, राइट, कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। अगर मैं इस ईमेल आईडी को ऐड करता हूं तो ये ईमेल आईडी ऐड हो जाएगा। किसके अंदर करना है? सब्सक्राइब के अंदर में करना है। और अपडेट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स, तो जो भी 8 लोगों का कॉन्टैक्ट था वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे हम टैग कर सकते हैं DM टेस्ट, इसको हम टैग कर दिए, ये एक इंपोर्ट हो जाता है, 1 इंपोर्टेड, कंप्लीट इंपोर्ट। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये मैसेज ईमेल पे भी आ जाता है कि आपका इंपोर्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। तो अभी तक हमने 8 लोगों को ऐड कर रखा था, आप यहाँ देखिएगा कि 9वां ऐड हो गया, तो 9th कॉन्टैक्ट ये यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, तो इस तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये सब्सक्राइब के अंदर मैंने डाला है, इसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम डाल सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ओके, अभी फिर मैं अगर ऑल कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाएं, ये तो कॉन्टैक्ट्स से रिलेटेड है। अगर हम कैंपेन पे जाएं, शायद इस बीच में और भी एक आध लोगों को अगर पहुंचा होगा और अगर उन्होंने ओपन किया है तो वो भी देख लेंगे, राइट। 5 people have received this email and all five has clicked it. ओके, तो हमने जो भी लोगों को भेजा था कैंपेन, जितने लोगों को हमने यानी भेजा था उसमें से 5 लोगों ने मेल को ओपन किया है, एक बाउंस किया है और मेल को ओपन ही नहीं किया बल्कि उन्होंने क्लिक किया है। कौन कौन से, किन किन लोगों ने? सबसे ज्यादा इस लिंक पे गया है, फिर हमारा फेसबुक लिंक पे गया है, फिर उसके बाद सेकंड पे गया है, यूट्यूब चैनल पे भी गया है, राइट। तो इस तरह से इन लोगों ने ओपन किया है और कितनी बार ओपन किया है वो भी यहाँ पे दिख के आ जा रहा है। ओके अब ये जो है टॉप लोकेशन ओपन बाय, दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट, चूंकि ये ऑफ कोर्स जो है USA का दिखा रहा है, चूंकि जीमेल सर्वर को यूज कर रहे हैं इसलिए। इंडिया एक इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। अब ये इंडिया से किसका आया है ये मुझे नहीं पता, किसका ये ट्रैक हो रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ये कंट्री को किसको इंडिया पिक कर रहा है, किसको US पिक कर रहा है, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। बट ओवरऑल इतनी ये सारी चीजें आपको दिख के आ जाता है और आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब होता क्या है ईमेल मार्केटिंग पे कि जितने लोगों को आप ईमेल भेज रहे हैं, रेगुलर ईमेल भेज रहे हैं, उसमें से कितने ओपन कर रहे हैं और कितने उसको नहीं देख रहे हैं। तो जो ओपन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में इंटरेस्टेड हैं और वो देख रहे हैं, आपके वेबसाइट पे भी जा रहे हैं, क्लिक भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो लोग ओपन ही नहीं कर रहे हैं, राइट, बिल्कुल ही ओपन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके रिपोर्ट में जाके हमारी जो एक्टिविटी है उसके अंदर जाके हम देख सकते हैं किन्होंने ओपन किया है और डिडंट ओपन। तो डिडंट ओपन, अगर जो है कोई ईमेल आईडी पे डिडंट ओपन वाला ऑप्शन, यानी एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी है या 10 ईमेल आईडीज ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली आपके मेल सेंट को आपको नहीं ओपन कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, स्लोली उनको अनसब्सक्राइब लिस्ट के अंदर उसको मूव कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब मेल भेजेंगे तो उसको नहीं जाएगा। उससे क्या होगा कि आप जितने लोगों को मेल भेज रहे हैं, मैक्सिमम लोग अगर उसको ओपन कर रहे हैं तो आपका चांसेस ये है कि आपका ये ईमेल स्पैम में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों को कंटिन्यूसली भेजते रहें जो कि नहीं ओपन कर रहे हैं, बाद में क्या होगा कि वो आपके ईमेल को स्पैम लिस्ट में डाल देंगे और जब वो स्पैम लिस्ट में डाल देंगे तो आपका मैक्सिमम चांस ये होगा कि ये जो ईमेल जो आप भेजेंगे वो स्पैम फोल्डर में ही जाएगा, वो इनबॉक्स में नहीं जाएगा। अब ये 5 लोगों में से कितने लोगों के इनबॉक्स में गया है, कितने लोगों के स्पैम में गया है मुझे नहीं पता, बट मेरे पास ये जो मैंने अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी यूज किया वो मेरे इनबॉक्स में हिट किया है। तो मुझे नहीं पता बाकी लोगों का कितने लोगों का स्पैम में गया है। अभी जैसे शहरियार ने शायद बताया था उसके स्पैम में गया था, बाकी और लोगों का स्पैम में गया या इनबॉक्स में गया आप लोग देख सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये सब्जेक्ट लाइन के ऊपर भी आपका मेल डिफाइन करता है कि वो कहाँ जाएगा। अब चूंकि ये टेस्टिंग ही हमने लिखा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्पैम में गया। अगर हम इसको कुछ
इनोवेटिवली हम कोई डिफाइन करें, कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज कर लें सो दैट स्पैम सा ना दिखे, तो वो सीधा सीधा आपके इनबॉक्स में जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप ईमेल कैंपेन, तो ये तो मैंने आपको बेसिक वर्जन से आपको बताया है। आप और भी दूसरे क्रिएट में जाके और भी डिफरेंट जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप उसको रेगुलर में ही करें। ठीक है, रेगुलर में जाके आप वहां पे, यहाँ पे कैंपेन, मैंने यहाँ पे कैंपेन ऑलरेडी बनाया हुआ था। ठीक है, तो जो भी मैंने बनाया है या तो उस नाम से जाएंगे, या आप कुछ और नए नाम से आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप और नए नाम से क्रिएट करके, लेकिन चूंकि आप लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट भी बनाया है, तो आप अपने प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं और वहां से आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। ठीक है, कोशिश करें इफ पॉसिबल आप मेरा ईमेल आईडी जो यहाँ पे info@digitos वाला है, आप उसको यूज कर लें, info@digitos.com। जो आप सब्सक्राइबर लिस्ट में डाल रहे हैं, आप मेरे इस ईमेल आईडी को आप लोग अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल के उसके बाद सेंड कीजिए इसको, सो दैट हम लोग रिव्यू कर पाए कि उसके अंदर क्या हुआ है। राइट, सो अ स्मॉल टास्क टू ऑल ऑफ यू कि आप अपने सब्सक्राइबर 10, 20, 30 जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, आप उसको CSV फॉर्मेट में या कॉपी एंड पेस्ट फॉर्मेट में आप रेडी रखें, और बाकी चीजों को, आपके पास बैनर रेडी है, आपके पास टेक्स्ट रेडी है जो कि आपने विक्स साइट पे डाला है, और उसके बाद आप लोग उस प्रोसेस को कंप्लीट करके और फिर हम लोग रिव्यू कर लेंगे कि इसके अंदर क्या ऑप्शन हैं, क्या ऑप्शन आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो वो भी हम लोग रिव्यू कर लेंगे। बट दिस इज समथिंग विच इज द चीपेस्ट ऑप्शन फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और चीपेस्ट ऑप्शन है, जो आप अपने नए नए ऑफर्स को अपने क्लाइंट तक भेज सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं। कोई ऑफर कोड है 20%, 30% सीजन ऑफर, या फर्स्ट टाइम साइन अप के लिए अगर कोई आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। राइट, या फिर प्रोमो कोड आप मार्केट करना चाहते हैं कि अगर शॉपिंग के टाइम ये वाला कोड अगर आपने यूज किया तो आपको 10%, 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये चीजें भी आप यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, देन वी विल कैच अप अगेन टुमारो टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। No, there is no option to retrieve it back. Saf, there is no option to retrieve it back. You can only, for next time, you can just remove him from your list, and then those things will not, like your email will not be sent to that. Yeah. I want to ask regarding the negative keyword, sir. Why are we deleting that, sir? Why it is a loss for us? I didn't understand. I couldn't get you, Gani. If the one word is excluded, you said we have to delete it and send it to negative keyword. So why are we doing that? It is a loss for us, no, sir. Like you are asking the topic related to MailChimp, or you are talking about something else? Google Ads. Google Ads के लिए आप पूछ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जैसे अभी हम लोग कल एक कैंपेन रन कर रहे थे, दुबई का एक कैंपेन था, इंटीरियर डिजाइनर का कैंपेन था। अब वहाँ पे क्लिक्स काफी कॉस्टली जा रहे हैं, और लेकिन वहाँ पे लोग जो है, वहाँ पे 3-4 क्लिक्स ऐसे आए जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी के अंदर लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। राइट, वो क्लिक करने के बाद उन्होंने फॉर्म सबमिट किया और उसके अंदर उन्होंने लिखा लुकिंग फॉर जॉब। तो अब इस तरह की चीज अगर होंगी जो कि आपके क्लिक को वेस्ट कर रहा है, विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, एज ए कंपनी ऑनर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, सो आप उसको नेगेटिव कीवर्ड के अंदर आप डाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो नेगेटिव नहीं है, देन यू डोंट पुट इट। Okay, sir. Thank you, sir. और किसी का कोई क्वेश्चन है? Yeah. All right, guys. So see you tomorrow again at the same time, and we will discuss the next topic. बट ये जो मेल चिम्प का जो आप लोगों को मैंने बताया है, ये जरा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लें, और इसके ऊपर फिर अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। ओके, ऑल राइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।